application components. There are total 8 components. Then we have also seen application. आई थिंक मेन और क्या हुआ था हमारा? हाँ, डोमेन के बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन. See, this much we have covered yesterday. Is there any confusion, any doubts? मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक बार देख लो, अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हो बिफोर स्टार्टिंग विद द थिंग्स. हेलो मैम. हेलो.
No doubts? Yeah, Kirti. Ma'am, one point, compliance in application characteristics. Okay, compliance means standards. Application Standard. has to follow standards, regulations, standards. जैसे मैंने कल आपको बताया था, for every website, a website has to follow W3 standards, World Wide Web standards. अलग Okay, अलग okay. स्टैंडर्ड्स होते हैं. ओके, और कभी कभी जैसे एप्लीकेशन के बारे में एक जेनरिक स्टैंडर्ड मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का जो टाइटल आप देखते हो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है. राइट साइड में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन्स होते हैं. ठीक है. फाइल मेनू हमेशा Okay. फर्स्ट होता है. हेल्प मेनू हमेशा लास्ट होता है. सो बेसिकली ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड. फॉर एवरी मेनू देयर इज अ शॉर्टकट की. ओके. Yes. तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं. ओके. एनीथिंग एल्स? Nothing. Okay, we'll proceed further. So yesterday we were discussing about type of application. What is desktop application? Desktop application means it is also known as single tier application. Single tier application. सिंगल टीयर एप्लीकेशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, all the application components will get installed on a single computer, making it standalone. एक टाइम पे एप्लीकेशन एक ही सिस्टम पे, एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है और उसको एक ही यूजर यूज कर सकता है. जैसे समझो मुझे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना है, तो व्हाट आई डू? I'll install antivirus software on my system. So it will get only installed on my system and only I will be able to use it. If I want to install the antivirus software on 10 different machines, it will take time. Each time I will be starting the installation on one system, right? So ऐसा मुझे 10 टाइम्स करना पड़ेगा 10 मशीन्स के लिए. Now second is, what is the example yesterday I have given of desktop application? Microsoft Office, Open Office, antivirus softwares. Client server applications are known as two tier. Two-tier applications. Two-tier applications means what? Components are distributed over two layers or tiers. Some components reside on the client machine, some components will reside on server. जनरली क्लाइंट मशीन पे एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस दिखाई देता है और जो डेटाबेस होता है वो सर्वर पे होता है. फ्रॉम क्लाइंट मशीन, ओके, लाइक सपोज लैब में मेरा सिस्टम है, उस लैब में जो मेरा सिस्टम है वो कनेक्टेड है सर्वर के साथ. So on my system, I'm able to open the application. I can see the user interface. But whatever I do now, for that, it will send a request to server. Server will check and process the request and send the required data to client. Okay, so client server architecture is there wherever you have local area network. Like it resides, like whenever in the office you see there is a local area network. All the systems are connected with one another and all these systems are connected with a single server. So multiple machines are client and there is only a single server. Okay. कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्लाइंट पे रहते हैं, जैसे यूजर इंटरफेस जो होता है वो क्लाइंट सिस्टम पे आपको दिखता है, डेटाबेस जो रहता है वो सर्वर पे होता है. ओके. इसका एग्जांपल अगर देना चाहो तो यू कैन गिव साइबर मॉनिटर. जैसे सपोज मेरा साइबर कैफे है. Okay. On Cyber Cafe, I am the owner of Cyber Cafe. All the machines are connected with each other, right? So now on my system, okay, I can see what activities you are doing. So यहाँ पे 10-15 अलग अलग systems है. हर system पे क्या access हो रहा है मैं आपके activities पे नजर रख सकती हूँ. So मेरे system पे एक ऐसा software है जो मुझे आपके activity पे नजर रखने के लिए useful है. Okay, got it everyone? Cyber Monitor is an example of
क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। साइबर मॉनिटर Yes, पता है ma'am. आपको क्या होता है? साइबर कैफे जो ओनर होता है ना साइबर कैफे का, उसके सिस्टम पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो देख सकता है किसका कितना टाइम हुआ यूसेज, कौन कितने टाइम से वो साइबर कैफे यूज कर रहा है, क्या एक्सेस हो रहा है, वगैरह वगैरह। यू कैन कीप एन आई। ओके, द नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशन। वेब applications are known as three tier, or n tier applications. Here it is known as three tier or n tier applications. All application components are distributed on three layers: browser, web server, and database server. From browser, we whenever we try to access the application, it will send a request to web server. Web server is connected with database server. Web server will check the request, and if the request is correct, everything is correct, it will send the required data to the browser. All the websites have the example of web application. The last one is mobile. Mobile means all application components are installed on single layer, on single mobile handset. Okay, this mobile applications run on mobile operating systems, and some of the applications need internet connectivity, some of the application may not need internet connectivity. What did everyone? Yes. Mostly tires, it only has a tiers. ये desktop application की जैसे ही होता है. All the application components are getting installed on single handset. Okay. अभी next. This is quite important. Application service model. Application service model में क्या है? Generally, when you start working in IT company, no, there are different type of projects you work on. Like sometimes you may get selected on in a company where they have their own products. Okay, आपने सुना होगा नाम तो पता नहीं, service based companies, service based company and product based companies. So product based company means what? The company is having itself like its own products. जैसे माइक्रोसॉफ्ट की खुद के प्रोडक्ट्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट किसी और क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन डेवलप नहीं करती. माइक्रोसॉफ्ट के खुद के प्रोडक्ट है. ओके, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट एंड सो ऑन. सो माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है? दे डू अ सर्वे, मार्केट सर्वे. बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस, मार्केट सर्वे, दे गैदर द रिक्वायरमेंट्स. वो देखते हैं कि मार्केट में किस सॉफ्टवेयर की नीड है. They do a market survey, and based on that, they get the requirements. They try to understand कि market में कौन से application की जरूरत है, कौन से type का software की जरूरत है. Okay, so based on that, based on the market analysis, market survey, they understand the requirements for the application. Then they study the requirements in detail, and based on that, they develop the application. Okay. Software project means what? When we develop the application for one particular customer, one particular client to satisfy his need, it is known as software project. For example, if we are developing an application for a hospital, like Pune Hospital, then Pune Hospital is our client. We are developing the hospital management system for Pune Hospital. So it is what? It's our client. We are giving services to that hospital. So it's a software project. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जनरली कहाँ होते हैं? सर्विस बेस्ड कंपनीज में. सर्विस बेस्ड कंपनीज में अलग अलग जगह आपके क्लाइंट्स होते हैं, एंड यू गिव सर्विसेज टू योर क्लाइंट. यू डेवलप द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर नीड्स. ये दोनों में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट का मतलब क्या? आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए एप्लीकेशन डेवलप नहीं करते.
जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो, प्रोडक्ट मतलब वी आर नॉट डेवलपिंग द एप्लीकेशन फॉर वन पर्टिकुलर कस्टमर, वी आर डेवलपिंग द एप्लीकेशन फॉर जनरल पब्लिक, जनरल मार्केट. एनीवन कैन ओन इट, एनीवन कैन यूज इट. कोई भी उसको खरीद सकता है, यूज कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. एनीवन कैन बाय द लाइसेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड कैन यूज इट. ओपन ऑफिस इज अ फ्री प्रोडक्ट, इट्स एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट. जो भी आपके टेस्टिंग के टूल्स है वो भी प्रोडक्ट्स है. HP UFT, what is this UFT? It is a product of HP. So in Google की भी बहुत सारी प्रोडक्ट है, जैसे GPay is one of the product. So there are also products by other companies. So software product का मतलब क्या? We are developing the application not for the single customer. Instead of that, we develop the application for general public, general market, so that anybody can own it, anybody can use it. So सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मार्केट एनालिसिस किया जाता है, उससे समझा जाता है कि मार्केट में किस टाइप का एप्लीकेशन की जरूरत है, एंड बेस्ड ऑन दैट द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड एंड देन टेस्टेड एंड देन रिलीज्ड. प्रोजेक्ट का मतलब क्या? एप्लीकेशन इज डेवलप्ड फॉर वन पर्टिकुलर क्लाइंट, वन पर्टिकुलर कस्टमर टू सैटिस्फाई हिज नीड. So generally software projects are there in service-based companies. Enhancement means, enhancement का मतलब होता है we do the enhancement in product and project both. We can do enhancement in the product and project company both. Enhancement का मतलब होता है we are adding new features, addition of new functionality to existing application. Like for example, earlier version of WhatsApp were not having pay feature. But now if you see, pay feature is added in the WhatsApp. Okay, so it is what? Addition, it is enhancement. New, when you are adding new functionalities to existing application, it is known as enhancement. The next is customization of codes. Customization of codes का मतलब क्या? Customization of codes का मतलब we are customizing the application as per our needs. ओके, कस्टमाइजेशन ऑफ कोड्स का मतलब क्या होता है? बहुत से सॉफ्टवेयर ना आजकल ओपन सोर्स है. सपोज मुझे कोई एप्लीकेशन चाहिए, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दैट एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट आई विल डू? I found an application similar to it on in the while searching. So what I wanted to do now, I don't want to develop the application from scratch. मेरे पास उस एप्लीकेशन का कोड है, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके वो एप्लीकेशन में यूज करना चाहती हूँ. So it is customization of codes. COTS means commercial off the shelf. Commercial. Off the shelf. कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रेस सिलाना है. ओके, लेट्स से यू वांट टू, आपको ड्रेस सिलाना है. ड्रेस मतलब पंजाबी ड्रेस, सलवार कुर्ता व्हाटएवर. सो आपने एक कपड़ा लिया. ओके, कपड़ा लिया मार्केट से, एंड देन यू वांट टू गेट स्टिच्ड, यू वांट टू गेट इट स्टिच्ड. तो फिर आप क्या करोगे? मैंने भी कपड़ा लिया सेम टाइप का, ओके, सेम कलर का. लेट्स से यू हैव टेकन अ क्लॉथ ऑफ ब्लू कलर, प्लेन ब्लू कलर. मैंने भी लिया, आपने भी लिया. अभी आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना चाहोगे. जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू गेट इट एम्ब्रॉयडरी. ओके, मुझे एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए, मुझे जरदोसी वर्क चाहिए. सो कस्टमाइजेशन ऑफ कॉट्स में मैं क्या करूंगी? आई विल गो टू द टेलर, आई विल से कि मुझे गले के पास जरदोसी वर्क चाहिए. ओके, बाकी मुझे सलवार में मुझे मतलब पलाजो स्टाइल चाहिए. ओके, आपने उसको चूड़ीदार पैजामा बनाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड यू वांट टू हैव एम्ब्रॉयडरी ऑन फुल ड्रेस. सो इट इज व्हाट? कस्टमाइजेशन. कस्टमाइजेशन का मतलब आप अपनी नीड के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप उसको जैसा चाहिए वैसे चेंज करके ले रहे हो. मैं अपने नीड के हिसाब से उसको जैसा चाहिए वैसा चेंज करके ले रही हूँ, बेस्ड ऑन माय चॉइस, बेस्ड ऑन माय नीड.
ठीक है। सो कस्टमाइजेशन ऑफ कॉट्स मतलब कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अभी ड्रेस के केस में मैंने आपको बताया कि जैसे आपने फुल एम्ब्रॉयडरी करके लिया, मैंने जरदोसी वर्क करके लिया। सो सॉफ्टवेयर के केस में क्या होगा? सॉफ्टवेयर के केस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ओपन सोर्स आते हैं। नाउअडेज यू गेट मेनी एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स। जैसे एचआरएम एप्लीकेशन आप देखो ना, तो एचआरएम एप्लीकेशन भी बहुत सारे ओपन सोर्स मिल जाते हैं। सो ओपन सोर्स है मतलब क्या? उसका सोर्स कोड अवेलेबल है। ओके, तो मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए था, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, वो एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ओपन सोर्स फ्री। तो इंस्टेड ऑफ पूरा एप्लीकेशन स्क्रैच से डेवलप करने से अच्छा मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास जाऊंगी, उनको बोलूंगी कि ये एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करके चाहिए, और जितना चेंजेस वो करेंगे उसी के लिए मैं उनको पैसा दूंगी, तो मेरा पैसा बचेगा ना। सो इट इज कस्टमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेना, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लेना। टेकिंग अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर and making modification as per the need. Re-engineering. What is re-engineering? Re means again, engineering means development. So re-engineering means again developing the same application with a new technology or database. Okay. Re means again, engineering means development. So again developing the same application with a new technology. क्यों? देखो, अगर कोई एप्लीकेशन है जो बहुत सालों पहले डेवलप हुआ था, जिस टेक्नोलॉजी में वो डेवलप हुआ था, वो टेक्नोलॉजी अभी आउटडेट हो चुकी है, उस एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करना भी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जिस टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ था वो आउटडेट हो चुकी है। सो अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर उस केस में क्या किया जाता है? वी डू री इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन को वापस से डेवलप करते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ताकि उसमें जैसे चाहिए चेंजेस कर सके। ओके, सब लोग एक बार देख लो, कोई चीज नहीं समझे तो पूछो। हेलो मैम। हाँ बोलो। एक क्लास की लिंक है ना, मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट से, टीम से। अच्छा, वो ट्राई किया, अभी हो गया। तो कल का भी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या है इशू पता नहीं है। वो कल का भी नहीं, टास्क और आज का रिकॉर्डिंग भी। है, मिल जाएगा आपको। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐड नहीं किया, तो मैं देखती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो किया था। हाँ हाँ, और आज का भी मतलब डालो आपका होने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक ओके, सुनाओ, एक बार देख लो, मैंने ये पढ़ा है, किसी को नहीं समझा हो तो पूछो। Body, we are first selected body and after color is a property use the action. If you want, you may create a new file.
क्या हुआ? किसने कुछ नहीं क्या कर रहे थे? ताने थोड़ा आंखों में ये हो रहा। No questions at all. Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Now there are two categories of application. One is system software and second is application software. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. System softwares are the softwares which helps the computer to run. Okay, system softwares वो softwares होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज, कंपाइलर्स आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Application softwares are those softwares which help the user to perform its task. Okay, all the applications which we use are the example of application software like WhatsApp, Facebook, YouTube. जो application हम लोगों के लिए बनाए गए हैं वो application software है. और जो applications हम लोग directly use ही नहीं करते, जैसे compiler हम लोग directly use नहीं करते, मतलब compiler है, operating system है, operating system हमें पता है हम लोग generally use नहीं करते directly. So it helps the computer to run. तो ऐसे applications को system software बोला जाता है. ठीक है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं ऑपरेट करने के लिए उनको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ओके, जैसे यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर्स अलाउज टू help the device to interact with the operating system. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स यूज करते हैं. ओके, गुड. So here our first chapter is, and now we are going to start with the new chapter. Development of software application. Shall we proceed? Girls, Yes, ma'am. Yes, ma'am. in this chapter, we are going to learn about SDLC, Software Development Lifecycle. See what is the agenda of this chapter, topics of this chapter, which we are going to cover. SDLC, what is Software Development Lifecycle? SDLC models introduction, project team members and their responsibilities, challenges in SDLC phases, issues that can be present in the application, and how to detect those defects. Now we are going to how to detect these issues. यहाँ पे भी आपका टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है. टेस्टिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड चैप्टर. पहले चैप्टर में हमने ये देखा कि एप्लीकेशन क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसके क्या कंपोनेंट्स है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इन सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ द एप्लीकेशन इज गेटिंग डेवलप्ड, व्हाट आर द challenges in the development of software application, how the bugs come into the application. This we are going to see in this chapter. First topic is SDLC. What is SDLC? SDLC is a process which is used to, which is followed to develop a software application. SDLC is what? It's a software development life cycle. It is a process which is followed to develop software application. In SDLC, there are total 6 phases. One is requirement phase, second is design phase, third is development phase, fourth is testing phase, fifth is deployment, and sixth one is maintenance. Okay, so in SDLC, there are total 6 phases. What is there in the requirement phase? In requirement phase, generally we collect the requirements from the customer. Okay, requirements are gathered. Okay, चाहे वो product हो या project हो, पहले requirements को gather करते हैं. Then we do a feasibility study. Do we have the resources for developing for this requirements? अगर इस रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप करते हैं तो उसके लिए क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेस है, क्या डेवलप कर सकते हैं, तो उसका पूरा स्टडी किया जाता है. ओके, कलेक्शन ऑफ, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लेंगे, क्या डेवलप करना है इसके लिए रिक्वायरमेंट्स लेंगे,
फिर फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। ओके, शेल वी डेवलप, मतलब हम लोग सच में इसके लिए डेवलप कर सकते हैं क्या, करना चाहिए कि नहीं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर वीकनेस, जैसे मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, सो फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, क्या हम लोग इस रिक्वायरमेंट के लिए सच में डेवलप कर सकते हैं क्या हमारे पास उतने डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, कैन वी डेवलप इट ऑन टाइम, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेस। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद अगर ये पता चला कि सब कुछ ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो है उसी के लिए डेवलप करना है, एंड वी हैव दैट, हम लोग चेक करेंगे हमारे पास उतने रिसोर्सेस है। सो सपोज फिजिबिलिटी स्टडी में ये आता है कि रिक्वायरमेंट्स के लिए डेवलप करना है, एंड वी डू हैव डेवलपर्स इन सफिशिएंट नंबर्स, टेस्टर्स इन सफिशिएंट नंबर्स। सो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको डिटेल में स्टडी किया जाएगा, और हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करके क्या बनाया जाता है, SRS। Each requirement is studied in detail and then it is documented. SRS is created. ओके, सो पहले फिजिबिलिटी स्टडी की कि हम लोग सच में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं क्या, हमारे पास रिसोर्सेस है क्या, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। उसके बाद पता चला कि हमारे पास डेवलपर सफिशिएंट नंबर में है, टेस्टर सफिशिएंट नंबर में, हम लोग सच में डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, हमारे पास कैपेसिटी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया जाएगा, एंड स्टडी करने के बाद वी विल राइट दैट रिक्वायरमेंट। हम लोग उस रिक्वायरमेंट को लिखेंगे, रिक्वायरमेंट को लिख के रखेंगे, डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, और जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी जाती है उसको बोला जाता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो SRS के अंदर क्या होती है, जब आप डिटेल में स्टडी करते हो रिक्वायरमेंट को, रिक्वायरमेंट सारी SRS डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है। ओके, ये कौन करता है, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट विल स्टडी ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट इन डिटेल, एंड देन आफ्टर स्टडिंग ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट इन डिटेल ही विल नोट इट डाउन। स्टडी करने की क्या जरूरत है रिक्वायरमेंट की, क्योंकि बहुत बार रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंफ्यूजिंग होती है, कभी कभी रिक्वायरमेंट समझी नहीं होती है क्या है। सो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए कस्टमर से। सो उसके लिए हर रिक्वायरमेंट जो भी ऐसा, हर रिक्वायरमेंट जो है उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है, और फिर रिक्वायरमेंट जो है उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट इज studied and written down in a document which is known as system requirement specification. System requirement specification को SRS बोला जाता है। सो हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करके डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, हर रिक्वायरमेंट को लिख के रखा जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट को लिख के रखते हैं उसको बोला जाता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अभी डॉक्यूमेंट बन गया, रिक्वायरमेंट को पढ़ा, अच्छे से स्टडी किया, और हर रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करके रखा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जनरेट होने के बाद जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर है उनको एक बार वैलिडेट किया जाता है। Every requirement from the SRS document is studied, validated. चेक करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट में लिखी गई है whether it is making sense. ओके, तो क्या क्या बताया मैंने रिक्वायरमेंट फेज में क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, फिर देखा जाता है उसका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या, सच में बनाना चाहिए क्या, उस रिक्वायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, क्या हमारे पास उतने डेवलपर्स, टेस्टर सब कुछ है। ओके, क्या मार्केट में प्रोडक्ट रहेगा या नहीं चलेगा। सो ये सारी स्टडी की जाती है। उसके बाद
अगर समझो पता चल गया कि हम लोग अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, मार्केट में चलेगा, हमें डेवलप करना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, देन वी विल क्रिएट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट SRS। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या होती है, वैलिडेट। ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा उसके अंदर को इसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा, इसके अंदर लिखी हुई हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करके रखा जाए, ठीक है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मीन्स व्हाट, each and every requirement from the document is validated, checked. It is checked whether the requirement is really making sense or not. और जैसे रिक्वायरमेंट चेक हो जाती है डॉक्यूमेंट के अंदर की, तो SRS क्या हो जाता है, बेसलाइन। बेसलाइन मतलब फाइनलाइज्ड, अप्रूव्ड। From the requirement document, we will check each and every requirement. We will do the validation of requirement. Validation मतलब चेक किया जाता है कि रिक्वायरमेंट करेक्ट है या, अगर प्रॉपरली लिखी गई है, रिक्वायरमेंट करेक्ट है, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, बेसलाइन, फाइनलाइज, फ्रीज, अप्रूव। ये सब कुछ एक ही है, इसको अलग अलग नाम दिए। बेसलाइन को आप फाइनलाइज भी बोल सकते हो, फ्रीज भी बोल सकते हो, अप्रूव भी बोल सकते हो। So once the requirements is validated, SRS will be baselined or freeze or approved. ठीक है, एक बार देखो समझा है क्या रिक्वायरमेंट फेज। Any doubt? No? No, ma'am. Others? Nita? Aparna? No, ma'am. No, ma'am. Second phase is design phase. डिजाइन फेज में क्या करते हैं, अभी जो फर्स्ट फेज में हमने रिक्वायरमेंट को स्टडी किया, रिक्वायरमेंट को बेसलाइन किया, मतलब फाइनलाइज किया। अभी सेकेंड फेज में क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो चुका है उसके लिए क्या किया जाएगा, अभी पता है रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होना मतलब कि ये रिक्वायरमेंट है जिसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करना है। अभी इन रिक्वायरमेंट के लिए, ये फाइनल रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया जाए, कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट किया जाए, कौन सा आर्किटेक्चर होना चाहिए। उसके बाद लो लेवल डिजाइन। एक्चुअली जनरली डिजाइन फेज में दो टाइप की डिजाइन बनती है, वन इज हाई लेवल डिजाइन एंड सेकेंड इज लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन का मतलब क्या, हाई लेवल डिजाइन मीन्स वी हैव टू फाइनलाइज ऑन द एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। ये डिसाइड किया जाएगा कि अगर इन रिक्वायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसे कौन सी टेक्नोलॉजी में डेवलप किया जाए, उसका आर्किटेक्चर क्या रहेगा, डेटाबेस कौन सा रहेगा, डेटाबेस का डिजाइन कैसे रहेगा। ऑन ऑल दीज थिंग एप्लीकेशन विल बी डिसाइडेड, मतलब ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। लो लेवल डिजाइन मतलब डिटेल डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन, यहाँ पे कोड होता है। लो लेवल डिजाइन मतलब
मॉड्यूल डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन। मॉड्यूल डिजाइन का मतलब क्या? स्क्रीन डिजाइन मतलब जब पर्टिकुलर पेज ओपन करो तो वो कैसा दिखेगा। ये देखो, एक मिनट। सो मैं क्या बता रही थी आपको, अगर ये फाइनल रिक्वायरमेंट्स के एप्लीकेशन डेवलप करना है तो इन फाइनल रिक्वायरमेंट्स के लिए एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। Shall we use some programming language like Java or shall we select .NET, C Sharp? एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे रहेगा, whether we have to develop a desktop application or client server application or web based application. डेटाबेस का डिजाइन कैसा रहेगा, डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स बनने चाहिए, स्कीमास बनाने हैं क्या, व्यूज कितने बनेंगे। सो डेटाबेस का आर्किटेक्चर या डिजाइन। लो लेवल डिजाइन का मतलब क्या, मॉड्यूल डिजाइन। मॉड्यूल डिजाइन मतलब मॉड्यूल के अंदर क्या क्या रहेगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा मॉड्यूल का। उसके बाद मॉड्यूल का मतलब क्या, मॉड्यूल डिजाइन, मॉड्यूल के अंदर क्या क्या रहेगा। स्क्रीन डिजाइन मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइन। स्क्रीन डिजाइन इज व्हाट, जब एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो कैसा दिखना चाहिए, उसका लुक एंड फील। जैसे मैंने रेडिफ का लॉगिन पेज ओपन किया है, कैसा दिख रहा है। सो इट इज द स्क्रीन डिजाइन। मॉड्यूल डिजाइन का मतलब जब कोई मॉड्यूल ओपन करोगे तो उसके अंदर क्या क्या सब ऑप्शंस होने चाहिए। ओके, मॉड्यूल डिजाइन। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट और कोडिंग। डेवलपमेंट और कोडिंग फेज में डेवलपर विल डेवलप अ प्रोग्राम, then he will do unit testing, he will do debugging to check the location of the problem and correct it. डेवलपमेंट फेज में क्या होगा, जो भी डिजाइन है उसके बेसिस पर एप्लीकेशन को डेवलप किया जाएगा, कोड किया जाएगा, कोड करते करते यूनिट टेस्ट भी किया जाएगा। अगर कोई कोड चल नहीं रहा तो उसके लिए फिर डिबगिंग होगा। सो इट इज डेवलपमेंट और कोडिंग। यूनिट टेस्टिंग फॉर ईच एंड एवरी कोड को टेस्ट करना वैसा। Unit means it's the smallest piece of code. Like suppose in programming language you might have written a function. Java में पता है methods आप लिखते हो. Each method which you write is a unit. तो फिर आपने JUnit पता है आपको? Okay. So in design phase we will do high level design, low level design, and then developing में क्या होगा, डिजाइन बनने के बाद डिजाइन को भी बेसलाइन किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। वंस द डिजाइन इज रेडी, डिजाइन को भी रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करने के बाद उसको अप्रूव करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, बेसलाइन करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द डिजाइन द नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट। बेस्ड ऑन द स्क्रीन डिजाइन द कोडिंग विल बी डन। यहाँ पे देखो स्क्रीन डिजाइन बन गया, मतलब लॉगिन पेज ओपन करने के बाद कैसा दिखना चाहिए, स्क्रीन डिजाइन बन गया। बट स्क्रीन का डिजाइन बना है तो उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन का कोड भी चाहिए कि लॉगिन बटन हिट करने के बाद क्या होना चाहिए। तो वी हैव टू राइट कोड। सो डेवलपर विल राइट द कोड, बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, डेवलपर विल राइट द कोड। आफ्टर दैट ईच एंड एवरी प्रोग्राम विच ही राइट विल बी टेस्टेड। डीबगिंग, अगर समझो यूनिट टेस्टिंग में जो भी कोड लिखे गए उनको टेस्ट किया गया।
अगर कोई कोड में एरर आ रहा है तो उस कोड को डिबग किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा. Okay, this is a deliverable of this phase. Deliverable मतलब output. What is the deliverable of development phase? Application. Unit level testing report. सेकेंड एंड थर्ड को एक बार देखो, अगर नहीं समझा होगा तो पूछो. मैम यूनिट टेस्टिंग क्या होता है एग्जैक्ट, फिर से बताओ. यूनिट ओके, यूनिट टेस्टिंग आप आगे पढ़ने वाले हो, बट अभी के लिए मैं यूनिट टेस्टिंग ये बता सकती हूँ कि यूनिट मतलब क्या होता है. यूनिट टेस्टिंग करने से पहले आपको यूनिट क्या है ये पता होना चाहिए. व्हाट इज यूनिट? जस्ट अ सेकेंड. यूनिट मतलब smallest piece of code which can be compiled and run separately. It's the smallest piece of code which can be compiled, which can be run separately. Like in Java, you create a class. Class is a unit. Methods, functions. In C language, you have seen the main function, integer main. You write everything in the main function. Right? So the functions which you create, the methods which you create, the programs which you create are unit. So unit testing में क्या करते हैं, उस कोड को टेस्ट किया जाता है. We pass, जैसे for example, if you have written a function to add two numbers, okay, now we have to check whether the add function is working correctly or not. So what you will do, you will call the add function, you will pass the numbers, and you will check whether the output you are getting is correct or not. Right? Right? नहीं. Or let's say you have written a function to calculate the area of circle. You have to check whether it is calculating the area correctly or not. So you'll pass the value of radius and check whether the area is generated correct or not. Okay? Work product and delivery, that means after Output. output. After the for the Phase. उस Phase. particular phase का output. Any doubts here in the second phase? Second phase समझा क्या? डिजाइन. डिजाइन में क्या होगा? देखो, जब भी कोई वेब पेज डेवलप करना है, पहले उसका स्क्रीन डिजाइन बनता है. स्क्रीन डिजाइन मतलब जब पेज ओपन करोगे तो वो कैसा दिखना चाहिए, कहाँ पे बटन होनी चाहिए, कहाँ पे फील्ड होना चाहिए, उस बटन का काम क्या रहेगा. सो यूजर इंटरफेस डिजाइन और स्क्रीन डिजाइन मतलब सेम है. सो डेवलपर क्या करता है, जैसे ही उसका डेवलप करना खत्म हो जाता है, मतलब जैसे ही डिजाइन पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वो सबसे पहले डिजाइन के अंदर क्या बनता है, स्क्रीन डिजाइन. ओके, एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड हियर और अंडरस्टूड? Understood, ma'am. Understood. The next phase is testing phase. ये देखो, what is the output? हर phase का
कुछ ना कुछ आउटपुट है। रिक्वायरमेंट फेज का आउटपुट क्या है? SRS, बेसलाइन SRS। डिजाइन फेज का आउटपुट क्या है? अपने आर्किटेक्चरल प्लान, डेटाबेस डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन वगैरह। डिजाइन डेवलपमेंट और कोडिंग फेज का ये क्या है? आउटपुट क्या है? एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल। This is the output of this, coding phase. ठीक है। Every phase of SDLC has certain output, which is known as deliverable, work product. Work product and final product are different. Work product मतलब जब प्रोसेस चालू होती है, उस प्रोसेस के टाइम पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको वर्क प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ओके Now, in testing phase, you will check whether the product or the application is working as per the requirements or not. The next is deployment phase. Testing phase बताती हूँ। Testing phase में testers, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो। डिजाइन फेज में जो UI डिजाइनर होते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, वो स्क्रीन डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका डिजाइन बनेगा, जो डेटाबेस वाले होंगे वो डेटाबेस का डिजाइन बनाएंगे, मॉड्यूल डिजाइन बनाएंगे, फिर एप्लीकेशन कैसा दिखना चाहिए, उसका स्क्रीन कैसा दिखना चाहिए, उसका डिजाइन बनेगा। एंड बेस्ड ऑन दिस डिजाइंस डेवलपर विल डू कोडिंग। डेवलपर कोडिंग करेंगे। सो फर्स्ट इज डेवलपिंग प्रोग्राम, यूनिट टेस्टिंग, डिबगिंग। अभी नेक्स्ट फेज में क्या होगा? इस फेज का जो आउटपुट है वर्किंग कोड बेस एप्लीकेशन, इस फेज का जो आउटपुट है वो किसको दिया जाएगा? टेस्टिंग फेज को। In testing phase, testers will test that application based on the requirement, based on the SRS. If anything is not working as per requirement, tester will report as a bug. So tester will test the build. Build मतलब क्या? What is build? After the coding phase, what you are going to get? Application. जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन का मतलब क्या? आप इंस्टॉल करते हैं ना एप्लीकेशन, सो वो क्या होता है? EXE फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल होता है ना। सो वैसे डेवलपर डेवलप करने के बाद टेस्टर को क्या देगा? एप्लीकेशन। ये देखो, व्हाट इज दिस? एप्लीकेशन। इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो डेवलपर विल गिव द एप्लीकेशन टू टेस्टिंग टीम. Testing team will check that application and require data to client. Okay. After getting the build from the development team, see coding phase के बाद में डेवलपर टेस्टिंग टीम को क्या देगा? बिल्ड। बिल्ड मतलब एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जैसे टेस्टर को मिलेगा, टेस्टर विल टेस्ट दैट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द SRS. SRS मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. So based on requirement, tester will execute the build. First he will install it, then he will check that build based on requirement. अगर कोई चीज प्रॉपरली वर्क नहीं हो रही है तो उसके लिए टेस्टर क्या करेगा? डिफेक्ट रिपोर्ट करेगा। Got it? Test log का मतलब it is a document which keeps execution details.
कौन से टेस्ट केस कौन से टेस्टर ने एग्जीक्यूट किए, कब एग्जीक्यूट हुए, कौन से डेट पे एग्जीक्यूट हुए, वो सारे डिटेल टेस्ट लॉग में। सो बेसिकली टेस्टिंग का हिस्ट्री। डिप्लॉयमेंट, अभी एप्लीकेशन टेस्ट हो चुका है, टेस्टर ने टेस्ट कर लिया, अब नाउ एप्लीकेशन विल बी डिप्लॉयड एट कस्टमर साइट। एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट जो भी यूजर्स है उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद यूजर क्रिएशन ऑफ यूजर मैनुअल। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फेज? रिलीज नोट्स एंड यूजर मैनुअल। डिप्लॉयमेंट फेज क्या होता है एग्जैक्टली? आपने टेस्टिंग कर लिया, जो भी डिफेक्ट थे आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, टेस्ट किया, आपको जो भी प्रॉब्लम मिले एप्लीकेशन में उसको अपने डेवलपर को रिपोर्ट किया, डेवलपर ने वो सारे प्रॉब्लम फिक्स कर लिए। नाउ एप्लीकेशन इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, रेडी फॉर रिलीज। फिर आप एप्लीकेशन को क्या करोगे? आप रिलीज एप्लीकेशन को रिलीज करोगे कस्टमर को। यू विल रिलीज द एप्लीकेशन टू कस्टमर। जब एप्लीकेशन रिलीज होगा कस्टमर को, देन जैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना मतलब क्या होता है? We will go to customer site, we will install the application at customer site, we will give the users a training or demo. For example, अगर आपने नया वॉशिंग मशीन लिया ओके किसी शोरूम से, तो उसका एक टेक्निकल पर्सन आपके घर में आता है, वो आपको वॉशिंग मशीन के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद वो सारी चीजें वॉशिंग मशीन की आपको एक्सप्लेन करता है कि कोई कॉस्ट का पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो चला के दिखाता है एक एक चीज। इसको बोला जाता है यूजर ट्रेनिंग। सॉफ्टवेयर के केस में भी यूजर ट्रेनिंग होता है। Okay, we give the application demo to the user so that user can understand it and use it. Creation of user manual. यूजर मैनुअल मतलब यूजर गाइड होता है ना एप्लीकेशन के साथ, सो यहाँ पे यूजर मैनुअल डेवलप किया जाएगा। What is the output of this phase? Release notes and user manual. Okay, यूजर मैनुअल तो ऑलरेडी बताया। यूजर गाइड, यूजर मैनुअल से आपको टीवी के साथ टीवी का गाइड मिलता है, मशीन के साथ मशीन का गाइड मिलता है, वैसे एप्लीकेशन के साथ भी यूजर मैनुअल मिलता है। रिलीज नोट्स क्या होते हैं? Release notes are a communication document which are provided with each release. रिलीज नोट के अंदर ये दिया होता है कि इस नए वर्जन में हमने क्या क्या ऐड किया एप्लीकेशन में। अगर एप्लीकेशन में कोई नोन डिफेक्ट्स है तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं हम लोग, और ओके और ये देखते हैं कि एक मिनट, हाँ, रिलीज नोट्स क्या होता है? रिलीज नोट इज अ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट विच इज प्रोवाइडेड विद ईच रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर. इट कंटेन्स व्हाट आर द न्यू फीचर्स एडेड इन दिस पर्टिकुलर वर्जन। जो वर्जन रिलीज करे उस वर्जन के अंदर क्या क्या नया ऐड किया। ओके, द लास्ट वन इज मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में क्या होगा? अभी आपने कस्टमर को एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया मतलब रिलीज कर दिया। नाउ कस्टमर एंड एंड यूजर्स विल स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट होगा, मेंटेनेंस फेज विल स्टार्ट। फिर एप्लीकेशन जब तक यूज में है तब तक उसके ऊपर मेंटेनेंस चलता रहेगा। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू अवॉइड द प्रॉब्लम इन फ्यूचर, करेक्टिव मेंटेनेंस टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स। उसके बाद adaptive maintenance to adapt the application to particular environment, perfective maintenance to add new features. इसका मतलब क्या? देखो, मेंटेनेंस फेज सालों तक होता है। जब एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट होगा तब से लेकर जब तक एप्लीकेशन यूज में है तब तक उसके ऊपर मेंटेनेंस चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया बाइक लिया, अभी आप नया बाइक यूज करना स्टार्ट करते हो, तब से लेकर तो जब तक वो बाइक यूज में है बीच बीच में आप क्या करवाते हो? उसकी रिपेयरिंग करवाते हो, मेंटेनेंस करवाते हो। सो जब तक वो स्कूटर यूज में है तब तक उसके ऊपर क्या होना चाहिए? रेगुलर वैलिडेशन, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, मतलब बीच बीच में उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, राइट?
सो एप्लीकेशन के केस में भी मेंटेनेंस होता है। जैसे ही यूजर स्टार्ट करता है एप्लीकेशन को यूज करना, उसका मेंटेनेंस स्टार्ट होगा। मेंटेनेंस में अलग अलग टाइप के हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अभी मैंने आपको बताया कि बाइक के केस में उसकी रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर्विसिंग? बाइक तो नहीं है, न्यू है, अच्छी खासी चल रही है, नया भी है, अच्छा खासा चल रहा है, तो उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रेगुलर सर्विसिंग करवाने की क्या जरूरत है? ताकि अभी अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चले। क्या करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? अगर बाइक में कुछ आवाज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मैकेनिक के पास उसको लेके जाते हो। मैकेनिक को बोलते हो कि ये चीज नहीं चल रही है, इस पार्ट से आवाज आ रही है। मैकेनिक उसको खोलता है, देखता है क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है, बराबर। सो एप्लीकेशन की केस में भी यही चीजें होती है। जब यूजर यूज कर रहा है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम लगता है एप्लीकेशन में, तो वो आपके पास आएगा, बोलेगा ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको करेक्ट करके दोगे। सो इट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। एडाप्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप ठंडी आती है, आप स्वेटर्स, आप गरम गरम कपड़े पहनते हो, बराबर। जैसे ही गर्मी आती है, आप कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हो। रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हो, राइट। सो ये क्या है? अडेप्टेबिलिटी। एडाप्टिव मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के केस में क्या होगा? जैसे समझो एप्लीकेशन हमने जो कस्टमर को दिया, इट वाज डेवलप्ड टू वर्क ऑन विंडोज 7। इट इज वर्किंग फाइन ऑन विंडोज 7, बट मार्केट में विंडोज 8 आ चुका है, मार्केट में विंडोज 10 है, विंडोज 11 है। सो कस्टमर ये चाहता है, ये चेक करना चाहता है, क्या ये एप्लीकेशन ओके विंडोज 8 पे, विंडोज 10 पे, 11 पे चलता है क्या? परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? अभी कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ जैसे ही वो एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट होगा, बीच बीच में क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है। ओके, एडाप्टिव मेंटेनेंस मैंने बताया क्या? परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? जैसे एप्लीकेशन यूज कर रहा है कस्टमर, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद कस्टमर की नीड चेंज होगी। ओके, वो हो सकता है वो बोले कि इस एप्लीकेशन में नए फीचर ऐड करो, जिसके लिए वो आपको पैसा देगा। सो based on his changing needs, you have to add new features. Like WhatsApp पे स्टेटस ऐड हुआ, पे फीचर ऐड हुआ, वोटिंग वाला फीचर ऐड हुआ। सो वैसे ही एप्लीकेशन में धीरे धीरे क्या करते हैं, नए नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं, उसका नया वर्जन आते ही जाता है। ओके, what is the output of this phase? Change request document, code changes। चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट का मतलब, अगर कस्टमर को एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस चाहिए, तो वो उसके लिए एक चेंज रिक्वेस्ट भेजता है। And based on the change request, application is updated. So change request you can consider as the new requirement from client. जब भी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस चाहिए, he sends a change request. And based on the change request document, application is changed, updated. और of course, अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो कोड भी तो चेंज होगा ना। ठीक है, एक बार देख लो सब लोग, चेक करो, मुझे बताओ। बड़ी सखत नहीं। I'm intentionally taking it. थोड़ा हे वक्त है। नहीं नहीं, एक बार ये वाला देखो और थर्ड फोर्थ देखो, जो भी ऐसा लगता है डाउट्स है तो पूछो।
कीर्ति, अपर्णा, मोहिनी, स्मिता, काही डाउट्स है का नहीं है? नहीं है मैम। दो जनों को नहीं है, बाकी लोगों को है। कीर्ति, मैम नहीं है डाउट्स। गुड। सब लोग बोलो, अगर किसी को नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, No, ma'am. ग्रेट। Yes, TQV, TG compulsory का testing साठी software testing. चांगलं असतं केलेलं. म्हणजे आता इथे आपण कोर्स केलो आणि नंतर आपण पे करून म्हणजे ते घेतले. तर ते थोडं एक्चुअली एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे अच्छा समझेगा। सी, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नेहा. yes. She asked that what is this ISTQB and is it important to do ISTQB or not? तो आप सबको ही बताती हूँ. What is the full form of ISTQB? ISTQB stands for International The full form is International Software Testing Qualification Board. Now, ISTQB बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करवाता है. एक मिनट, इसकी साइड पे बताती हूँ आपको. ये देखो, istqb.org.
I'm searching for. नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें जो मैं ढूंढ रही हूँ, बट एक मिनट, वैसा ट्री फॉर्मेट में दिखता है। लेकिन नहीं दिख रहा है फिलहाल। हाँ, ये वाला। I was searching for this one. ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फाउंडेशन लेवल। ये देखो, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इधर ये वाला करो फाउंडेशन या ये वाला करो। जब तक आप फाउंडेशन नहीं करते हो ना, तब तक ये जो एडवांस लिखा है ना, एडवांस नहीं कर पाते। फर्स्ट यू टू क्लियर फाउंडेशन एग्जाम। सो इधर ये वाले फाउंडेशंस करो, उसके या फिर अजाइल का फाउंडेशन करना है तो अजाइल का फाउंडेशन करो। Then you can prepare for other exams. Advanced level मैनेजर वाला एग्जाम है, टेस्ट एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिस्ट है। तो वो एंट्री लेवल की सर्टिफाइड टेस्टर, एजाइल टेस्टर, बेसिक एंट्री लेवल की लेवल। हाँ, हाँ। एजाइल टेस्ट। करेक्ट। नहीं, ये भी है। तो फाउंडेशन। इसको बोला जाता है सर्टिफाइड टेस्टर फाउंडेशन लेवल। ये जो था ना अजाइल वाला, ये पहले नहीं था, ये बाद में ऐड। हाँ, मैम ये सभी एग्जाम ही क्या? हाँ, ये अजाइल फॉर्म टेस्टर पहले फॉर्म अजाइल फिल करना अप पड़ता है। हाँ, फॉर्म फिलअप करने के बाद 4 मंथ में रहती क्या ये एग्जाम? हाँ, 4 मंथ आई थिंक नहीं रहेगा। 4 मंथ बोला है क्या आपको? एक्चुअली मैंने सर्च किया था तब। अच्छा, नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने काफी पहले दी है। हाँ, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट वालों ने तो हाँ? कुछ नहीं बताया। नहीं, सीड में होती है ना, सीड में होती है। आप सीड में पूछो ना। मी सीड में तो सिली होती है। सीड मींस, हाँ, सीड मींस सीड मतलब हाँ, नहीं 3R है, ये 3R है ना। I was there in Seed Infotech Limited ना। तो सीड का जो है, सीड के यहाँ पे वहाँ पे सेंटर है, प्रोमेटिक टेस्टिंग सेंटर। तो हमारा भी आप जो सेंटर है मैम, सर्टिफिकेशन 3RI। 3R भी है ना, हाँ, ये बोलो 3RI भी 3R। सेंटर। तो फिर यहाँ पे होगा आपका एग्जाम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हमें मतलब ऑप्शनल रहता ना, कि हमें देनी हो तो फिलअप कर सकते फॉर्म, ऐसा रहता, कंपलसरी नहीं रहती। अच्छा, नहीं कंपलसरी नहीं होती है ये सर्टिफिकेशन। सी कैसा है बताऊं क्या सर्टिफिकेशन का? जैसे सपोज आप आप किसी, आप लाइक सपोज यू से दैट यू हैव द नॉलेज, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रही, सपोज मैं आपको बोलती हूँ मुझे सर्जरी आती है, आ जाओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन करती हूँ। सपोज आपको किसी कोई पेन हो रहा है या आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, मैं आपको बोलती हूँ कि आई हैव द सर्जन, लाइक सर्जरी का नॉलेज मुझे बहुत अच्छा है, आई विल डू सर्जरी। ठीक है, मैं आपके अपेंडिक्स की सर्जरी करती हूँ, बट मेरे पास डिग्री नहीं है, आई डोंट हैव द डिग्री MS सर्जन। बट मैं आपको बोलूंगी कि मुझे अच्छे से सर्जरी करना आता है, आप लेट जाओ मैं आपका ऑपरेशन करती हूँ। ओके, विल यू डू इट? नो नो। अगर मैं डॉक्टर का मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या आप करोगे मेरे से ऑपरेशन? नो। नहीं करोगे ना।
डेफिनेटली नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा यार। अगर समझो आपको कोई बोलता है कि मुझे नॉलेज अच्छा है, मैं आपका ऑपरेशन कर देता हूँ, उसके पास डिग्री नहीं है, ओके, तो वी विल नॉट, डेफिनेटली वी विल नॉट अलाउ हिम। हम लोग डिग्रीज देखते हैं कि नहीं, MS, MD, MBBS, बराबर ना? यस मैम। फिर क्यों देखते हैं? वो इसी के लिए देखते हैं ना, कि आपको मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिले। PRI का सर्टिफिकेट, PRI कितने लोग जानते हैं? हेलो सी, मैम। जैसे नेहा बोल रही है अभी कि 3RI के सर्टिफिकेट के साथ ये करना चाहिए क्या? सी, यहाँ पे देखो, आप जो कोर्स करते हो उससे आपको उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिलता है, बट इंस्टीट्यूट को कितने लोग जानते हैं? आप जब कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करते हो तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सब लोग जानते हैं। सो ये अलग क्वालिफिकेशन हो जाता है, दैट यू आर ISTQB सर्टिफाइड। एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, जो आपको सर्टिफाई कर रही है कि यू आर सर्टिफाइड टेस्टर। समझ में आ रहा है? तो जैसे यस मैम। मैंने वो इसी के लिए मैंने बोला कि अगर आप डॉक्टर का नॉलेज आपके पास है लेकिन डिग्री नहीं है तो कोई आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। वैसे ही है इसका, अगर आप टेस्टर हो लेकिन इंटरनेशनल बॉडी से सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है आपका, तो इसका मतलब आपको कैसे बोलेंगे कि आप टेस्टर हो? बहुत जरूरी होता है सर्टिफिकेशंस करना, एटलीस्ट और एक आधा गाइडेंस के सर्टिफिकेशन। लिए मैम, मैम हाँ आपने किया ही गए हैं। गाइडेंस। हाँ, मैंने किया हुआ है, आई थिंक 2013 में किया है। मतलब एग्जाम रहती है मैम उसकी? हाँ, एक मिनट रहेगा इसका। ये आ गया, ISTQB का सर्टिफिकेट। देखना पड़ेगा या फिर था, बहुत पुराना है ना, तो इतना चाहिए। ठीक है, जाने तो दिखाती थी मैं कैसा आता है वो सर्टिफिकेट, लेकिन मुझे याद नहीं है कहाँ से है। ये तो उसने भेज है। ये तो ये 1 महीने बाद में आता है, 15, ये देखो मैंने 13 में किया था, 2013।
ओके 15/8 15/1/13 मतलब जनवरी 15 ना जनवरी 15/13 नहीं मैंने दिसंबर में किया था, ये बाद में आया है मेरा, मुझे रिजल्ट पता चल गया था। तो सर्टिफिकेट कहाँ रहे? उसमें थियोरीज भी रहती है, थियोरीज के क्वेश्चंस एंड प्लस एमसीक्यू सिर्फ थियरी रहती। थियोरी। वापस बहुत पहले का। जाने तो अगर मिलता है तो दिखाती हूँ। 2013 मतलब कितने साल हो गए उसको? 10 साल। हाँ ना। That time I was working with Seed Infotech Limited, no? तो सीड ने हमें बोला था कि आप IST की भी सर्टिफिकेशन करो। CRIB सेंटर है, लेकिन सेल्फ प्रिपेयर करके खाली सेंटर है मैम वहाँ पे, वैसे गाइडेंस वगैरह नहीं मिलेगा वहाँ। अच्छा नहीं, हमने अगर कुछ क्लासेस प्रॉब्लम लिए है थे तो एक्चुअली। इन लोगों ने सीड वालों ने जैसे हमें टारगेट बोला था, लाइक दे टोल्ड अस लाइक 3 or 4 ट्रेनर्स टू गेट सर्टिफाइड ऑन IST की भी। पैसे ओके। वही कंपनी नहीं दिए थे, हमने नहीं दिए थे। एंड हाँ फिर हमने क्लासेस लिए उसके ऊपर। हाँ सो पहले अगर आपको मतलब एग्जाम देना है ना, यू हैव टू क्लियर ऑन दिस सर्टिफिकेशन। इधर ये जैसे मैंने किया है, CTFL बोलते हैं उसको, सर्टिफाइड टेस्टर फाउंडेशन लेवल। उसके बाद आपको अजाइल करना है, अजाइल कर सकते हो। और फिर एडवांस लेवल होता है ना, एक्सपर्ट लेवल होता है। 3 लेवल्स आर देयर। ओके, स्पेशलिस्ट जो है ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए है। एडवांस, एक्सपर्ट, ये देखो दिस इज एक्सपर्ट। सो फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू डू फाउंडेशन लेवल, देन उसके बाद एडवांस होता है और फिर एक्सपर्ट। और ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का अलग से है, ये बाद में ऐड हुआ, पहले इतना नहीं था सर्टिफिकेशन। ओके, तो आपको भी सर्टिफाइड इसी से करना पड़ेगा, STQB का सिलेबस। चलो ओके, नाउ यहाँ पे हाँ, SDLC मैंने आपको एक्सप्लेन किया। You know, the SDLC approaches are implemented. SDLC models, मतलब SDLC जो है ना process, these processes are implemented in different ways in the different SDLC model. SDLC models are the approaches. Okay, in this SDLC models, SDLC phases are implemented in different ways. Okay, जैसे waterfall model है, उसमें SDLC phases को अलग तरीके से implement किया गया है। स्पाइरल मॉडल में अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया है। सो मॉडल्स का मतलब क्या है? देयर आर डिफरेंट वेज इन विच SDLC phases are executed. The oldest model for software development is waterfall model. In waterfall model, okay, all the SDLC phases are implemented in linear sequential way. Okay, like step by step. Waterfall क्यों बोलते हैं? इसका नाम ही waterfall है। waterfall मतलब आपने देखा होगा ऊपर से नीचे आता है, right? The same way, okay, SDLC phases are implemented like a waterfall. पहला step first phase आएगा requirement.
सो रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर स्टडी करने के बाद हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में लिख के रखा जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट जो होता है जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट लिखते हैं डिटेल में स्टडी करने के बाद, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, SRS। इसको अलग अलग नाम दिया, कुछ लोग इसको SRS बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं SRS की जगह जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, कुछ लोग उसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग उसको सिर्फ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस नाम के पीछे मत जाओ, इट्स बेसिकली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फेज में रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया जाएगा, और फिर सारी रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करने के बाद लिख के रखा जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स को लिख के रखा जाता है उसको बोला जाता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या कुछ लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं उसको। अभी जैसे ही SRS बनेगा, SRS के अंदर की हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में चेक किया जाएगा, और फिर SRS को क्या किया जाएगा, अप्रूव। ओके, अप्रूव या इसको बोला जाता है बेसलाइन। So after SRS is created, it will be checked. If everything is okay in the SRS, it will be approved. Approve हो जाने के बाद क्या होगा, next phase will start. In next phase, designers will create design like high level design, low level design. They will select कि ये requirement है, इनके लिए application develop करना है, तो application कौन से technology में data develop किया जाए, कौन सा database application के लिए use किया जाए, एप्लीकेशन कैसा डेवलप करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाना है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। ओके, फिर उसका स्क्रीन डिजाइन वगैरह क्रिएट होता है, उसके जो यूजर इंटरफेस डिजाइनर है वो उसका स्क्रीन डिजाइन बनाएंगे एप्लीकेशन का। जैसे स्क्रीन डिजाइन वगैरह बन जाएगा, नेक्स्ट फेज उसको चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद अगर सब कुछ ओके है, नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट। इन नेक्स्ट फेज application will be developed, application will be coded based on the design। जैसा डिजाइन है उसके साथ उसके हिसाब से एप्लीकेशन को कोड किया जाएगा। जैसे ही डेवलपर कोड लिखेगा वो कोड को टेस्ट भी करेगा, यूनिट टेस्टिंग भी करेगा। इन यूनिट टेस्टिंग इफ इट इज फाउंड दैट द कोड इज नॉट वर्किंग, ओके, उसको डीबग किया जाएगा। ओके, सो डेवलपर एक एक प्रोग्राम लिखते जाएगा, फिर एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ कंबाइन करेगा। जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो क्या करते हैं, पहले एडिशन का फंक्शन लिखेगा, फिर सब्सट्रैक्शन फंक्शन लिखेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन लिखेगा, डिवीजन फंक्शन लिखेगा, और उन सारे फंक्शंस को एक साथ कंबाइन करेंगे। लाइक एडिशन फंक्शन विल बी इंटीग्रेटेड कंबाइंड विद सब्सट्रैक्शन, subtraction function will be combined with multiplication, multiplication will be again combined with division. So all these programs, all these functions are combined to form calculator। ठीक है, so कोडिंग फेज के बाद क्या मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा, टेस्टिंग टीम को। कोडिंग फेज में, डेवलपमेंट फेज में सारा पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, and that application will be given to testing team for testing। यहाँ पे टेस्टिंग टीम क्या करेगी, चेक करेगी कि जो एप्लीकेशन है वो एज पर रिक्वायरमेंट्स है क्या। टेस्टर को ये SRS दिया जाता है, टेस्टर जो भी टेस्टिंग करता है, टेस्टर टेस्ट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। टेस्टर रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में चेक करेगा, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन को चेक करेगा। क्या बटन क्लिक करने के बाद मैसेज आ रहा है क्या, रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या, ओके, प्रोफाइल अपडेट हो रहा है क्या। सो ही विल टेस्ट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग एज पर रिक्वायरमेंट, ओके, ही विल रिपोर्ट इट एज अ बग, प्रॉब्लम। अगर उसको लगता है कि कोई चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल रही है तो उसके लिए वो डिफेक्ट रिपोर्ट करेगा। इसके बाद डेवलपर डिफेक्ट को फिक्स करेगा। उसके बाद सब कुछ अगर ठीक हो गया तो एप्लीकेशन को रिलीज किया जाएगा कस्टमर के पास। एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल्ड एट कस्टमर साइट। एप्लीकेशन को कस्टमर साइट पे इंस्टॉल किया जाएगा, जितने भी यूजर्स है वहां पे उनको उसका डेमो दिया जाएगा, एप्लीकेशन कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया जाएगा, उसका डेमो दिया जाएगा।
उसके बाद यूजर्स विल स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन का यूज करना स्टार्ट हुआ, मेंटेनेंस फेज विल स्टार्ट। और एप्लीकेशन तब तक मेंटेनेंस में रहेगा जब तक वो यूज में है। जब तक वो यूज में है, ओके, उसके ऊपर मेंटेनेंस चलता रहता है। ओके, सो इन waterfall मॉडल all the phases are implemented one after another, okay, in a sequential manner. So इसके लिए waterfall मॉडल को दूसरा नाम है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। पूरे एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट रिक्वायरमेंट हम लोग करते हैं, इकट्ठा करते हैं इस पूरे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट। फिर उसके लिए डिजाइन बनता है, फिर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा। टेस्टिंग हो जाने के बाद एप्लीकेशन कस्टमर के यहाँ पे जाके इंस्टॉल किया जाएगा। अगर अच्छे से हो गया, इंस्टॉल चल रहा है, तो मेंटेनेंस फेज चलता रहेगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन के लिए एक साथ रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर एक साथ एप्लीकेशन के लिए पूरा रिक्वायरमेंट के लिए डिजाइन बनता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है। बट वाटरफॉल मॉडल इज टाइम कंज्यूमिंग। हो सकता है कस्टमर से आज रिक्वायरमेंट लिया और उसको 1 साल तक वेट करना पड़े एप्लीकेशन के लिए। What are the advantages and disadvantages of waterfall model? Waterfall model is very simple to implement. Step by step implement हो रहा है, तो it is very simple to understand, implement. Okay? It is good, or it should be used when we have to develop a small application where the requirements are clear. अगर कोई छोटा एप्लीकेशन डेवलप करना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, तो वाटरफॉल इज द बेस्ट मॉडल। जैसे मुझे कैलकुलेटर जैसा स्मॉल एप्लीकेशन डेवलप करना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट मुझे पता है, तो आई कैन यूज वाटरफॉल मॉडल। बट वाटरफॉल मॉडल ओल्डेस्ट मॉडल है, अभी ज्यादा यूज नहीं होता। दूसरा डिसएडवांटेज वाटरफॉल मॉडल का ये है कि Why it's time consuming? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये ओल्डेस्ट मॉडल है, और यहाँ पे क्या करते हैं बताया, ये जो फर्स्ट फेज है इसमें पूरे एप्लीकेशन के लिए एक साथ रिक्वायरमेंट देते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन के लिए कस्टमर को सोच पाना एक साथ डिफिकल्ट होता है। उसके माइंड में तो है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू सी लाइक कैसा होगा। उसके माइंड में जो आ रहा है वो बता रहा है। बहुत बार ना आपको पता होता है, बट यू डोंट हैव द क्लैरिटी। सो इन जब पहले फेज में आप पूरे एप्लीकेशन के लिए कस्टमर से रिक्वायरमेंट लोगे, कस्टमर मे नॉट बी क्लियर, सो ही मे टेक मोर टाइम टू टेल यू द रिक्वायरमेंट। उसमें गलतियां भी हो सकती है। और उसके बाद क्या होगा, डिजाइन बनेगा। डिजाइन बनने के बाद डेवलप पूरे एप्लीकेशन का डिजाइन बनेगा। फिर पूरे एप्लीकेशन को डेवलप किया जाएगा, पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाएगा। अभी अगर टेस्टिंग फेज में पता चलता है, सो इट इज ऑल टाइम कंज्यूमिंग। हर फेज के एंड में एक रिव्यू होता है, हर फेज। You are not audible, ma'am. सो वाटरफॉल मॉडल के बारे में मैं क्या बता रही थी आपको,
कि वाटरफॉल मॉडल में पूरे एप्लीकेशन के लिए एक साथ रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर पूरे एप्लीकेशन के लिए एक साथ डिजाइन बनाते हैं, और हर फेज के एंड में एक बार चेक किया जाता है कितना डिफिकल्ट है। हाँ, वन मोर थिंग इन वाटरफॉल मॉडल, जैसे आपने रिक्वायरमेंट ले लिया, डिजाइन बना लिया, डेवलप कर लिया, टेस्टिंग फेज में पता चला कि कोई रिक्वायरमेंट ही गलत है, वो रिक्वायरमेंट गलत थी, तो उसके लिए पीछे जाना, उसको सब करेक्ट करना, इट इज डिफिकल्ट। वाटरफॉल का कैसा होता है, ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता ना। सो यहाँ पे टेस्टिंग फेज में अगर मुझे पता चलता है कि कोई रिक्वायरमेंट गलत थी, तो पीछे जाके उसको करेक्शन करना डिफिकल्ट है। What is the advantage of waterfall? It is simple to implement, but disadvantage are it is time consuming, and अगर कोई लेटर फेज में आपको डिफेक्ट मिलता है तो उसको पीछे जाके फिक्स करना डिफिकल्ट। Is it understood? कीर्ति, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी लोग, स्मिता, मोहिनी, नहीं Yes, समझ ma'am. लो, नहीं समझो तो पूछो। यस, भक्ति, समीक्षा, समझ लो मैम। ओके गुड। सो आई थिंक आपका 3 बजे क्लास है आज भी, है कि नहीं है? गर्ल्स, डू यू हैव क्लास एट 3? है कि नहीं है, इतना तो बताओ। नो मैम। यू डोंट हैव हमारा क्लास? नहीं है। नहीं है, ओके। तो ये एक और मॉडल बता देती हूँ, देन विल स्टॉप, ओके। सो वाटरफॉल मॉडल के बाद मैं फटाफट, हाँ, इटरेटिव मॉडल बताती हूँ। इटरेटिव मॉडल, वाटरफॉल मॉडल का प्रॉब्लम क्या है, वाटरफॉल कैसे ऊपर से नीचे आता है, वैसे यहाँ पे भी वाटरफॉल मॉडल में भी सेम लॉजिक है। अगर स्टार्टिंग के फेज में का प्रॉब्लम आपको बाद में पता चलता है, जैसे टेस्टिंग फेज में पता चला कि कोई रिक्वायरमेंट गलत थी या डिजाइन गलत था, तो उसके लिए पीछे जाके पहले फेज में जाके करेक्शन करना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या होता है, हर फेज का जब सारा काम खत्म हो जाता है तो एंड में चेक किया जाता है कि इस फेज के से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीटेड है क्या। अगर कंप्लीटेड है तो ही नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। अगर नेक्स्ट फेज के एंड में भी चेक किया जाएगा इस फेज से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीटेड है तो ही नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, क्योंकि पीछे जाना डिफिकल्ट है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। नाउ व्हाट इज इटरेटिव मॉडल? इटरेटिव मॉडल में क्या होता है, इट इज नोन एज मल्टी वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव मॉडल में पूरे एप्लीकेशन की एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं ली जाती। आप कस्टमर से कोई एक फीचर के लिए रिक्वायरमेंट बोलते हो, मांगते हो, कस्टमर एक फीचर के लिए, एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट बताता है, आप उस रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, डिजाइन बनाते हो, डेवलप करते हो, डेवलप करने के बाद टेस्टिंग करते हो, एंड देन इट इज रेडी, दैट पर्टिकुलर फंक्शनलिटी इज रेडी, मॉड्यूल इज रेडी। Then you will take the requirement for module 2, you will analyze it, study it, design it, develop it, and then second module is also ready. Now the second module is integrated with first one. Second module को पहले module के साथ combine किया जाएगा। फिर तीसरे module के लिए requirement लेंगे, उसको study करेंगे, study करने के बाद उसका design बनेगा, coding बनेगा, कोड हो जाने के बाद में ये वाला पार्ट भी रेडी है, ओके, ये वाला मॉडल भी रेडी है। फिर इस मॉडल को भी पहले वाले मॉडल के साथ क्या करते हैं, कंबाइन, मतलब एक एक मॉडल जैसे जैसे डेवलप होगा पहले वाले मॉडल्स के साथ उसको कंबाइन करते हैं। ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक पूरा फाइनल एप्लीकेशन रेडी नहीं हो जाता। सो यू आर डेवलपिंग द एप्लीकेशन स्टेप वाइज,
पहले एक मॉडल डेवलप किया, फिर दूसरे मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट लिया, फिर उसको उसके ऊपर काम किया, सेकंड मॉडल डेवलप किया, फिर तीसरा मॉडल डेवलप किया, चौथा मॉडल डेवलप किया, लाइक दिस. ओके, यस, समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इटरेटिव मॉडल के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है? जैसे मैंने बताया, इटरेटिव मॉडल में पूरे एप्लीकेशन को एक साथ डेवलप नहीं करते. इटरेटिव मॉडल के एडवांटेज क्या है? दैट इन इटरेटिव मॉडल द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप. ओके, इटरेटिव मॉडल फ्लेक्सिबल है. अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती है तो प्रॉब्लम नहीं आए. जैसे कस्टमर ने अभी फोन किया, नया रिक्वायरमेंट दिया, तो आपको टेंशन नहीं होगा, आप नेक्स्ट इटरेशन के अंदर उसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन इज डेवलप्ड इन इटरेशन. एप्लीकेशन देखो ना, हर मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हो? यू आर रिपीटिंग रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग. So these phases are repeated for each part, for each module. So it is known as iterative. Okay, it is also known as multi-waterfall. Multi-waterfall matlab for every module we are taking the requirement, design, coding. So for every module we are repeating it. ठीक है? Iterative model सबसे best है. What is the example of iterative model? Agile, RAD, Rational Unified Process are the example of iterative model. Iterative model बहुत अच्छा मॉडल है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करनी है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जहाँ पे कस्टमर पूरे एप्लीकेशन के बारे में एक साथ नहीं सोच पा रहा है, यू कैन टेल कस्टमर, डोंट वरी, टेल मी द रिक्वायरमेंट ऑफ वन मॉड्यूल, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल मॉड्यूल. जैसे जैसे बनते जाएगा आपको दिखाते जाऊंगा. ओके, तो इटरेटिव मॉडल इज द बेस्ट मॉडल. इसी का एग्जांपल अजाइल है. समझ में आ रहा है? इसको मल्टी वाटरफॉल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हर पार्ट के लिए आप रिक्वायरमेंट दे रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो. सो यू आर रिपीटिंग दिस स्टेप्स. सो इट इज मल्टी वाटरफॉल. फॉर एवरी पार्ट वी आर रिपीटिंग इट. समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, हाँ मैम. Yes. यस मैम. मैम, सबको Ma'am. बोलो यस. अजाइल क्या रहता है मतलब? अजाइल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. जैसे वाटरफॉल है ना, वैसे ही हाँ. इट्स बेसिकली अजाइल इज अ वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर. जैसे अभी आपने देखा इटरेटिव मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, वैसे अजाइल एक तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का. ठीक है, मैं बताऊंगी आपको अजाइल के बारे में. ठीक है, ओके. ओके, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे. थैंक यू मैम. थैंक और मैम यू. रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग का दोनों भी भेजने के लिए फुल हो आप हमको. ठीक है, बोलती हूँ अभी. ठीक है. ओके.